السلام علیکم ناظرین، ایک شام ہمارے ساتھ کے ایک نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مختلف قسم کے نئے پروگرام لاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام کا جو مقصد ہے وہ 5 اگست 2019 کو کشمیر میں انڈیا نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کر کے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کو، جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے افراد ہیں، ان کو خصوصی حقوق حاصل تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ آیا انڈین حکومت کا یہ فیصلہ کس حد تک اس نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا ہے اور کشمیریوں کا اس حوالے سے کیا رد عمل رہا ہے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بندے رہیے گا اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مزید معلومات مل سکے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے اس کے سٹیٹس کو ختم کر دیا تھا، جو کہ مقبوضہ کشمیر کو تقریباً 70 سال سے حاصل تھا، جب سے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر اپنا غازبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا تھا کہ لداخ کو علیحدہ یونین کا درجہ حاصل ہوگا اور ساتھ ہی جموں اور کشمیر کو ایک علیحدہ سٹیٹس حاصل ہوگا اور اس کا سارا نظام دہلی کے ذریعے رن کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو 5 اگست 2020 کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اسی آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے 50,000 افواج پہلے ہی تعینات کی گئی تھی، اس میں 2,000 سے زائد فوج کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے کشمیر میں لوکل لیڈرشپ کو ہاؤس اریسٹ یا اریسٹ کر کے مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی انٹرنیٹ سروس اور ٹیلی فون سروس، ٹیلی ویژن وغیرہ کو بھی بند کر دیا گیا تھا، تاکہ جس ٹائم پہ وہ اس قسم کا فیصلہ کریں تو وہاں کے لوگوں کو اس بارے میں علم نہ ہو سکے اور وہ اپنی رائے یا جو انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کرنا تھا وہ نہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں انڈیا نے پہلے کرفیو کا نفاذ کیا، جو کہ دنیائے تاریخ کا سب سے لمبا کرفیو تھا۔ اس آرٹیکل کو ختم کیا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے اس مسئلے کو OIC میں اٹھایا اور ساتھ ہی سلامتی کونسل میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا اور ایک لمبی مدت کے بعد اس پر بحث و مباحثہ ہوا اور ساتھ ہی پاکستان نے اس چیز پر زور دیا کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ 5 اگست سے مختلف رہنماؤں کے یا کونسلز کے کشمیر کے اوپر جو بیانات آتے رہے وہ آپ کی موبائل سکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔
भारत सरकार को जो कुछ भी करना था, लेकिन हमारे यहाँ पे JNK को पूरा बंद क्यों किया गया? अगर ये बंद रखा गया तो इसका मतलब हमारे खिलाफ कुछ होने वाला था। हमारे पास 35A था, जिस स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, वो स्क्रैप किया गया। आर्टिकल 370 जिससे हमारा एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ, वो खत्म हुआ। इस जैसे मैरिज खत्म हो गया। नाउ नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कल जब ऐलान हुआ है तो हम भी परेशान हो गए इस बारे में। अगर हिंदुस्तान को कुछ करना ही था, मगर 15 अगस्त के बाद करना चाहिए था, क्योंकि आगे ईद आने वाली है, तो इससे लोगों में बहुत तशवीश पैदा हो गई है। हमारा जो गुजर बसर है इस वक्त परेशानी की हालत में है, कोई सुकून में नहीं है। हत्ता कि आज तक तो इसकी बात ही नहीं थी, कोई इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था किसी ने। मगर कल अचानक जब ये ऐलान हुआ है तो हम भी हैरान हो गए हैं। तो आज क्यों घरों में बैठकर छुपके हैं? बाहर निकलो और लोगों से कह दो कि ये ठीक अच्छा है या खराब है। हम कहते थे कि ये हमारे लिए आज़ादी थी, हम आज़ाद थे। आज हम चाहते हैं कि आज हम सोचते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि भारत की हरकत बैनुल-अक़वामी बिरादरी के ऊपर भी एक तमाचा है, और हम हैरान हैं कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी को जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था वो रिएक्शन नहीं है। पाकिस्तान को अपना केस पूरी तरह प्लीड करना चाहिए। जितना कुछ इंडिया ने वहाँ पर कत्लेआम किया है, इसका हिसाब इन पर जो है जंगी जराइम के मुकदमे बनने चाहिए। तो हमारी तो ये डिमांड है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मजलूम इंसानियत के पुश पर खड़ी हो। 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम इस वक्त चनार के उस पार अपनी कश्मीरी माँ बहनों के साथ शरीक हैं। हम उनके शाना बशाना हैं, हमारा जेवर भी उनके जिहाद के लिए हाजिर है, हमारे बेटे भी हाजिर हैं। इस आर्टिकल के बाद भारतीय अवाम को इन इलाकों में अपनी जगह खरीदने की भी इजाज़त हासिल होगी और वो इधर अपनी मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने दुनियाई तारीख़ का सबसे लंबा कर्फ्यू भी नाफिज किया। कश्मीर का मसला 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जूं का तूं मौजूद है, और इसी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। भारत के इस फैसले का बुनियादी मकसद कश्मीर में मौजूद मुसलमानों की तादाद को अक्सरियत से बदलकर अक़लियत में तब्दील करना है। इस सिलसिले में कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान और कश्मीर में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए, और 5 अगस्त को पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, और पाकिस्तान का नया नक्शा भी सामने आया जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी, जिसमें मकबूजा कश्मीर और जम्मू को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकीनन वाज़िह है कि कश्मीर के मसले पर किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो यहाँ है मुजाहिदीन हमारे सरफरोश अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, हमारे सरफरोश हैं। हम इनकी कुर्बानियों के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो मुजाहिदीन बंदूक उठा करे हमारे हीरो हैं, ये हमारे लीडर हैं। जवानों के तर्जुमान भी यही हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमें अपनी कीमती आराह से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और साथ ही मौजूद
सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही हम ये दुआ भी करते हैं कि कश्मीर का मसला उनकी उमंगों के मुताबिक हल हो जाए। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।